الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شیخ انصاری صاحب فرماتے ہیں کہ جو جناب شیخ کبیر جعفر کاشف الغطا نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم معاطات میں مشہور کے نظریے اباحے کے قائل ہو جائیں اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعاطئین نے قصد تملیک کیا ہے تو اس سے 7-8 قواعد جدیدہ لازم آتے ہیں۔ اور پھر جناب شیخ انصاری صاحب نے علیکم السلام ان قواعد جدیدہ کے اس کو استبعاد صرف کہا۔ جناب شیخ جعفر کبیر وہ استعجاب کر رہے ہیں، استبعاد کر رہے ہیں، بعید جان رہے ہیں، حقیقت میں وہ قواعد جدیدہ کے قائل نہیں ہیں اور نہ قواعد جدیدہ لازم آتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم جواب دے رہے ہیں کہ پہلا یہ تھا کہ عقود تابع قصود نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ ایک جواب حلی، ایک جواب نقضی 5 مثالیں ہم نے ذکر کی کہ بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں پر عقود تابع قصود نہیں ہوتے، تو اس سے ایک فرق نہیں پڑتا، جیسے ان 5 جگہوں پر عقد تابع قصد نہیں ہے، خلاف نیت متعاطئین، خلاف نیت متباین ہو رہا ہے، ویسے معاطات میں بھی اگر خلاف ہو رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ایک اشکال یہ تھا کہ تصرف کا ارادہ مملک ہو، ملکیت آور ہو، یا خود شخص کے لیے جو تصرف کر رہا ہے، یا تیسرا اور چوتھا، ظاہراً چوتھا ایک قرار دیا تھا ایک قاعدہ جدیدہ کہ تصرف کوئی کرے اور ملکیت کسی اور کے ہاں حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ایک آج جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ تلف سماوی، جس میں متعاطئین میں سے کسی نے بھی کوئی تصرف نہیں کیا ہے، اس کے باوجود شے تلف ہو جائے تو وہ شے کا تلف ہونا مملک ہو، خود اس کے لیے جس کے یہاں تلف ہوئی ہے آنما ملکیت کے قائل ہوں، یا یہ کہ وہ تلف جو آسمانی تلف ہے بغیر کسی اختیار کے تلف ہوئی ہے، وہ طرف مقابل کے لیے بھی ملکیت کا سبب بنے۔ تو یہ شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جو کسی دوسرے کا مال اپنے پاس رکھتا ہے، طرف مقابل کے یہاں تلف ہوئی ہے اور یہ اس کا مالک ہو جائے، غیر اس کا مالک ہو جائے۔ یا اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ، ایک اور اشکال تھا کہ خمس و زکوٰۃ و استطاعت وغیرہ اگر ہم اباحہ کے قائل ہوتے ہیں، ملکیت آور کے قائل نہیں ہوتے، تو غیر کے مال میں خمس دینا، زکوٰۃ دینا، استطاعت پیدا ہونا، ربا ہونا، یہ سب لازم آتا ہے۔ تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ خمس و زکوٰۃ میں یہ کہاں شرط ہے کہ جب انسان مالک ہو تبھی وہ خمس دے، استطاعت پیدا ہو جائے اپنے مال میں تبھی حج واجب ہو، نہیں کوئی دوسرا بذل کر دے اور اس سے بھی استطاعت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جوابات ہیں جو ہم پڑھنا شروع کر چکے ہیں۔ جو آخری جواب ہم پڑھ رہے تھے اس میں تنظیر ذکر کی گئی تھی، ایک واہب کی اور دوسرے ذل خیار کی۔ کہاں چلا گیا؟ جی، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ، یہاں سے پڑھتے ہیں، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِن لُزُومِ كَوْنِ إِرَادَةِ التَّصَرُّفِ مُمَلِّكًا فَلَا بَأْسَ بِالْتِزَامِهِ۔ پہلے یہ دونوں اس سے پہلے والی تھوڑا سا پڑھ لیں، اس میں یہ تھا، نعم یہی پڑھنا ہے، صحیح کرے کہ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِن لُزُومِ كَوْنِ إِرَادَةِ التَّصَرُّفِ مُمَلِّكًا فَلَا بَأْسَ بِالْتِزَامِهِ۔ اگر یہ کہیں کہ جناب ایک آدمی ارادہ تصرف کر رہا ہے، معاطات 10 دن پہلے ہو چکا ہے، توجہ رہے، معاطات 10 دن پہلے ہو چکا ہے، دونوں کا قصد کیا تھا؟ تملیک کا، مگر ہم
مشہور اس کے ملکیت کے قائل نہیں ہوئے۔ کیا قائل ہوئے؟ کہ صرف اباحت آتا ہے، تصرف کرنے کی اجازت آتی ہے مگر ملکیت نہیں آتی۔ اب جب وہ 10 دن کے بعد ارادہ تملک کرے گا یا ارادہ تصرف، حالہ تملک میں وہی ایک ہی بات ہے، ارادہ تصرف کرے گا تو یہ تصرف ملکیت آور ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں، ہم شیخ انصاری کہہ رہے ہیں کہ اس کے ملتزم ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں اس کا التزام ہم کو کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس 3 قسم کی دلیلیں ہیں، دونوں 3 قسم کی دلیلوں میں آپس میں ٹکراؤ اور تناقض پیدا ہو رہا ہے۔ استصحاب ملکیت یا عدم ملکیت یہ کہہ رہا ہے کہ تملیک کرنے کی نیت سے جو دیا گیا ہے ملکیت حاصل ہوئی یا نہیں شک ہے۔ اصل کیا ہے؟ استصحاب ملکیت کریں گے، جس کا مال تھا اس کی ملکیت کے اوپر باقی رہے، یعنی معاطات میں لین دین کرنے کے بعد ملکیت حاصل نہیں ہوئی۔ ایک دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ ملکیت نہیں ہے، دوسری طرف سے سیرت قائم ہے کہ ابتدائے زمانہ سے کہ جب بھی معاطات کے ذریعے سے لین دین کرتے ہیں ہر قسم کے تصرف جو ہے جائز ہو جاتے ہیں، ہر قسم کا تصرف کرتے رہے ہیں، حتیٰ متوقف بر ملک بھی تصرف کرتے رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا سے ہی ملکیت ہے، جب سے آپ نے اس کو لیا معاطات کے ذریعے سے تمام تصرفات جائز ہیں۔ مقابل میں تیسرا تھا کہ سارے تصرفات جائز ہیں لیکن متوقف بر ملک تصرفات جائز نہیں ہیں۔ یہ 3 قسم کی دلیلیں، ایک کہہ رہی ہے کہ ابتدا ہی سے ملکیت ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ استصحاب کہہ رہا ہے کہ ملکیت نہیں ہے، تیسرے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ تصرف مالکانہ کریں گے تب وہاں ملکیت کی ضرورت پڑے گی۔ تو ان 3 قسم کی دلیلوں کا آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ ہم ملتزم ہو جائیں گے کہ تصرف ملکیت آور ہو۔ کون سا تصرف؟ مالکانہ تصرف ملکیت آور ہو، تاکہ یہ جو 3 قسم کی متناقض دلیلیں ہیں ان کو جمع کیا جا سکے۔ توجہ کریں، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ، یہ جو کہا تھا کہ من لزوم کون ارادت تصرف مملکن، تصرف کا ارادہ ملکیت آور ہو، اور یہ قاعدہ جدیدہ لازم آتا ہے۔ معاطات کیا نام ہے ملکیت آور ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ صیغہ مملک ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ٹوٹ پھوٹ جائے ایک طرف دوسری طرف ملکیت آ جائے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن تصرف میرے یہاں مملک ہو میرے مال کا، دوسرے کے یہاں میرا مال گیا ہے وہ اس کی جو ملکیت کا سبب ہو، یہ تصرف مملک ہو، یہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ مگر جناب شیخ انصاری فرما رہے ہیں فلا باس بالتزام ہی، ہم اس کے ملتزم ہو جائیں گے کہ تصرف کیا ہے؟ ملکیت آور ہے۔ کیوں؟ اذا کان مقتضی الجمع، جب مقتضی جمع یہی ہو، کانا یعنی کیا؟ وہی التزام، تصرف کو ملکیت آور قرار دیں۔ کیوں ملکیت آور قرار دیں؟ کیونکہ 3 قسم کی دلیلیں ہمارے پاس ہیں، وہ 3 قسم کی دلیلیں ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف یا ملکیت بالکل سے نہیں ہے جیسا کہ استصحاب کہہ رہا ہے، یا ملکیت بالکل سے ہے ابتدا سے، جیسا کہ سیرت مستمرہ یہی رہی ہے کہ معاطات میں لین دین کرنے کے بعد لوگ جو ماخوذ بالمعاطات ہے اس کے اوپر مکمل تصرف کرتے رہے ہیں۔ اور تیسری قسم کی دلیلیں کیا ہے کہ نہیں، وہ تصرفات جائز ہیں جو ملکیت پر متوقف نہیں ہیں۔ مقتضی الجمع بین کس چیز میں؟ بین الاصل، اصل سے مراد کیا ہے؟ اصل استصحاب۔ استصحاب کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی شے کے مالک تھے، معاطات میں لین دین کرنے کے بعد زید اس کا مالک ہوا یا نہیں شک ہے، کیا کریں گے؟ جس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت اسی کے اوپر باقی رہے گی۔ 2 ودلیل جواز تصرف المطلق، اور وہ دلیل جو مطلق تصرفات کو جائز قرار دی تھی، کون سی دلیل مطلق تصرفات کو جائز قرار دے رہی تھی؟ کیا؟ آیت احل اللہ تجارت لن تراض وغیرہ کے ذریعے سے جو سیرت قائم ہو گئی ہے شروع سے، وہ کہہ رہی کہ سارے تصرفات جائز ہیں۔ لین دین کرنے کے بعد یہ معاطات بیع ہے، معاطات تجارت لن تراض ہے، شارع مقدس نے کوئی اس کے اوپر اشکال نہیں کیا ہے، بلکہ آیتوں اور روایتوں کے ذریعے سے اسے تائید ہوتی ہے، لہذا سارے تصرفات از ابتدا جائز ہیں۔ ولو ہم حکم مشہور کیا حکم لگا رہے ہیں؟ اباحت التصرف کا،
लेकिन अहल्लल्लाहुल बै की आयत, तिजारत अंतराज की आयत, और जो सीरत मुस्तमिर्रा कायम है, क्या कि मुआतात में इब्तिदा से सब कुछ तसर्रुफ करते हैं, हत्ता मालिकाना तसर्रुफत, ये बिल जारिया वगैरह भी सब करते हैं, बेच देते हैं, वक्फ कर देते हैं, तौरीस ईसा कर देते हैं, तौरीस कर देते हैं, सब कुछ जायज़ है। वो दलील दूसरी हुई, यानी जम बैन असल नंबर 1, असल क्या है? इस्तिस्हाब मिल्कियत हर एक की। दूसरे दलील जवाज तसर्रुफ अल मुतलक, वो दलीलें जो मुतलक तसर्रुफात को जायज़ करार दे रही थी, अहल्लल्लाह तिजारत अंतराज और सीरत मुस्तमिरा। व अदिल्लतो तवक्कुफ बाज़ तसर्रुफात अलल मिल्क, और तीसरी मुतनाकिस दलील क्या है कि कह रही है दलीलें कि देखिए वो तसर्रुफात तो आप कर सकते हैं जो मुतवक्किफ बर मिल्क नहीं है, लेकिन उन तसर्रुफात को जो मुतवक्किफ बर मिल्क है, मुआतात के जरिए से लेन देन हुए में नहीं कर सकते। बाज़ तसर्रुफात जो मुतवक्किफ बर मिल्क है, अदम जवाज, वो मुतवक्किफ हैं, जायज़ नहीं है। 3 किस्म की दलीलें हुई, वाज़ेह है ना। इस्तिस्हाब कह रहा है कि मिल्कियत ही नहीं है, वाज़ेह। दूसरे सीरत मुस्तमिर्रा अहल्लल्लाहुल बै तिजारत अंतराज कह रहे हैं कि मिल्कियत है, वाज़ेह, मुकम्मल तसर्रुफ करने का हक है। और वो तीसरी किस्म क्या, जो बाज़ तसर्रुफात मुतवक्किफ बर मिल्क हैं, वो कहने की जनाब मिल्कियत नहीं है, सिर्फ वो तसर्रुफात करिए जो मुतवक्किफ बर मिल्क नहीं। इन सब के जम का मुक्तज़ा क्या निकलता है कि हम पाबंद हो जाएं। किस चीज़ के पाबंद हो जाएं? कि तसर्रुफ मुमल्लिक है, जब आप मालिकाना तसर्रुफ करने जाएंगे आननमा मिल्कियत हासिल हो जाएगी। पहले से इबाहत तसर्रुफ के सिर्फ कायल हैं, जब तसर्रुफ करने जाएंगे तो क्या हो जाएगी? मिल्कियत आ जाएगी। तो इसका मुल्तजिम होना कि तसर्रुफ ही मुमल्लिक हो, कोई कायदे जदीदा लाजिम नहीं आता, बल्कि मुक्तज़ा कायदा यही है, फयकून। बस ये जो तसर्रुफ हम कर रहे हैं और तसर्रुफ के जरिए से मिल्कियत के कायल हो रहे हैं, इसकी 2 नज़ीर है हमारे पास। पिछले दर्स में इसकी वजाहत नहीं हो सकी थी, एक की मैंने की थी। इसकी नज़ीर ये है कि अगर आपने एक मामला किया, मामला करने के बाद ख़ियार मजलिस है या ख़ियार शर्त रखा, 10 दिन तक मैं चाहूँ तो मैं वापस ले सकता हूँ, मामले को बातिल कर सकता हूँ। जिस वक्त बेतो व इश्तरातो कर रहे हैं, मिल्कियत बना रहे हैं ना, एक दूसरे की मिल्कियत हो गई, मगर ये मिल्कियत लंगड़ी है, लूली है, अभी जो है पाबरजा नहीं हुई है। कब तक पाबरजा नहीं होगी? जब तक कि ख़ियार का हुक्म ख़त्म ना हो जाए। अब आपने जो जिसने मामला किया है वो अपने ख़ियार को इस्तेमाल करे एक मरतबा लफ्ज़ के ज़रिए से कि मैं इस ख़ियार को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मामले को मैं फसक कर रहा हूँ, मेरी चीज़ मेरी चीज़ है, और फिर मैं अपनी चीज़ को या बेच दूँ या हिबा कर दूँ या इस्तेमाल जैसे चाहूँ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। एक सूरत तो ये है कि मैं कहूँ कि जो मैंने ख़ियार शर्त रखा था उस शर्त को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस ख़ियार को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लफ्ज़ के ज़रिए से बोल करके ख़ियार को इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो जो मिल्कियत दूसरे को हो गई थी वापस ले रहा है ख़ियार इस्तेमाल करने के बाद। याद रहे कि मुआतात बै बाकायदा से हुआ है, बेतो व इश्तरातो हुआ है, लेकिन 10 दिन की शर्त रखने की वजह से ख़ियार शर्त है, उसमें वो मिल्कियत क्या रहेगी? मुतज़लज़िल रहेगी। अगर मैं अपने इस्तेमाल कर लूँ ख़ियार को लफ्ज़ इस्तेमाल करके तब भी, और लफ्ज़ इस्तेमाल किए बग़ैर अगर मैं वो चीज़ जो बेची है अभी मेरे पास है, मैंने उसको दिया नहीं है, उसको इस्तेमाल करने लगूँ। कैसे इस्तेमाल? मालिकाना तसर्रुफ वाला इस्तेमाल, मसलन उसको उठा करके किसी दूसरे के दे दूं, क्या हो जाएगा? ये ख़ियार का इस्तेमाल करना हो जाएगा, मिल्कियत जो दी थी अभी वो वापस हो जाएगी। कैसे साहिब ख़ियार को अख्तियार होता है अपने माल में तसर्रुफ करने का? उस तसर्रुफ करने का जो अख्तियार है वो ख़ियार की बुनियाद पर है। वो ख़ियार या लफ्ज़न इस्तेमाल किया जाए या अमलन फ़िअलन इस्तेमाल किया जाए। फयकून का वो तो अपने ही माल में करेगा। जी जी, अपना माल है नहीं, बेतो व इश्तरातो के जरिए से मामला हो चुका है,
समन पर मेरी मिल्कियत और मुसमन पर उसकी मिल्कियत है, मगर ये मिल्कियत मुतजल्जिल है। जब तक खयार है तब तक मैं समन का मुकम्मल से मालिक नहीं होगा, तब तक सामने वाला मुसमन का बाकायदा से मालिक नहीं होगा। अब इस खयार को इस्तेमाल करने के लिए जो मैं उसको देना चाह रहा हूँ, मुसमन अभी मेरे पास है, मैं उसको तोड़ फोड़ दूं, मैं उसको किसी के हवाले कर दूं, जारिया है उसके साथ वती कर दूं, ये क्या हो जाएगा? अपने खयार को इस्तेमाल करते हुए जो दूसरे की मिल्कियत बेतों व इश्तरतों के जरिए से बनाए हुए थे, उस मिल्कियत को तोड़ दिया, या लफ्ज के जरिए से कि भाई मैं अब कनीज आपको नहीं दूंगा, 10 दिन का मौका था, अभी 7 दिन हुआ, मैं अपनी कनीज वापस ले रहा हूं। क्या हो जाएगा? मिल्कियत फिर मेरी कनीज के ऊपर बन जाएगी, वरना मिल्कियत बना चुका था बेतों व इश्तरतों के जरिए से। एक मरतबा लफ्ज इस्तेमाल किया, एक मरतबा लफ्ज इस्तेमाल ना करें, कनीज के साथ तसर्रुफ करना शुरू कर दें जो मालिकाना तसर्रुफ होता है, तो ये भी वापस लेना हो गया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मुआतात में लेन देन करने के बाद एक किस्म की मिल्कियत दोनों तरफ है, मगर ये मिल्कियत मुतजल्जिल है, जैसे ही तसर्रुफ करेगा वो मिल्कियत आ जाएगी। इसके लिए नज़ीर यही है का तसर्रुफ ज़िल ख़ियार। वल वाहिब, या वो आदमी जो किसी दूसरे को अपनी शय हिबा कर रहा है, और ये शय भी रिश्तेदार को नहीं, क्योंकि करीबी रिश्तेदार में वापस लेना मुमकिन नहीं होता, हिबा कर रहा है, ये इस हिबा को मैं वापस ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। अब एक मरतबा हिबा को वापस बोल करके ले रहा हूँ कि जो मैंने आपको दिया है ये आप मुझे दे दीजिए, माजरत मैं आपको ये नहीं दे सकता, वापस ले लिया, अपनी मिल्कियत दोबारा बन गई। एक मरतबा बोल के नहीं ले रहा है, बल्कि क्या किया है, जो चीज उसे देने के लिए कहा है अभी सामने पड़ी है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे। कौन? वाहिब ही, यानी ये अपने वह हिबा की हुई चीज में वापस पलटना और इस्तेमाल करना कहलाएगा। तसर्रुफ ज़िल ख़ियार वल वाहिब फीमा इंतक़ला अन्हुमा, जो इन दोनों से मुंतकिल हुआ, किससे? ज़िल ख़ियार ने मुंतकिल किया है, वाहिब ने भी मुंतकिल कर दिया है। मुंतकिल करने के बाद भी जा करके उस कनीज से वती करे, बिलवती वल बैए, या उसे बेच दे, जो दूसरे को बेच चुका है पहले, ज़ैद को पहले बेच चुका है मगर ख़ियार शर्त रखा है, सही, और फिर उसको जो है जाकर के किसी तीसरे को बेच दे। वल इत्क, वो गुलाम जो मैंने बेच दिया है जैद को, तवज्जो करें, गुलाम मैंने जैद को बेच दिया है, 10 दिन का अख्तियार रखा है, 7वें दिन मैंने उस गुलाम को जो बेच दिया जाकर के किसी तीसरे को बेच दूं, अच्छी रकम मिल रही थी, या हिबा कर दूं या आजाद कर दूं, ये जो मैं कर रहा हूं ये मालिकाना तसर्रुफ कर रहा हूं अपने उस माल में जो दूसरे को बेतों व इश्तरतों के जरिए से बेच चुका हूं। यानी कि वाहिब या ज़िल ख़ियार अपनी शय जो दे चुका है उसमें अगर ऐसा तसर्रुफ करता है तो क्या हो जाएगा? वो मामला फस्ख हो जाएगा, इसकी तरफ मिल्कियत पलट जाएगी। वह शिब्ह मा, बै किया है या इत्क किया है या वत ये क्या, या इस तरह के वो मालिकाना तसर्रुफ जिससे इंसान का हिबा में वापस लेने का इरादा पता चलता है या ख़ियार के इस्तेमाल करने का पता चलता है, कैसे इन सब के ज़रिए से मामला फस्ख हो जाता है, बातिल हो जाता है, मिल्कियत वापस पलट आती है। ऐसे ही तसर्रुफ भी क्या है, मुआतात में तसर्रुफ भी मिल्कियत आवर है, कोई मुश्किल नहीं है इसके मुल्तजिम होने में। नहीं, वो तीनों दलीलों के जम का नतीजा ये बनता है कि तसर्रुफ को हम मिल्कियत आवर माने। इस्तिसाब क्या कह रहा है, पहले आपकी मिल्कियत थी, जैद की वो मिल्कियत नहीं हुई थी, मुआतात करके जैद की मिल्कियत बनी या नहीं बनी? असली इस्तिसाब क्या करे, उसकी मिल्कियत नहीं बनी, मेरी मिल्कियत अभी बाकी है, यानी बिल्कुल तसर्रुफ उसको जायज नहीं है उसका इस्तेमाल करना, ना इब्तिदा ने ना कुछ भी उसके तसर्रुफ करना जायज नहीं। ये एक। दूसरी दलील क्या कह रही थी, मुतलक अहल्लल्लाहुल बै, जैसे ही लिया सारे तसर्रुफात कर सकता है, तिजारतन तराज सारे तसर्रुफात कर सकता है, सीरत मुस्तमिरा रही है, सारे तसर्रुफात पहले दिन से वो मुआतात में लिया हुआ कर सकता है। इस्तिसाब कह रहा है बिल्कुल नहीं, और ये अदिल्ला मुतलक वाले क्या कह रहे हैं कि तसर्रुफ कर सकता है। तीसरी किस्म की क्या थी कि वो तसर्रुफात जो मुतवक्किफ बर मिलकर वो नहीं कर सकते, आप किताब को पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, उसे बेच नहीं सकते। इन तीनों में आपस में तनाकुस पाया जा रहा है,
मिल्कियत है, मिल्कियत नहीं है। मिल्कियत उस वक्त है जब मालिकाना तसर्रुफ। इन तीनों से बचने का तरीका यह है कि जो नया कानून लाजिम आ रहा है कि तसर्रुफ जिस वक्त करे उस वक्त मिल्कियत आ जाए, तसर्रुफ मुमल्लिक हो, हम इसके पाबंद हो जाएंगे, ताकि इस्तिसाब का भी टकराव ना हो, मुतलक तसर्रुफ का भी टकराव ना हो, और जो मालिकाना तसर्रुफ है उसका भी। उन तीनों से बचने के लिए नतीजा ये है कि हम जिस वक्त तसर्रुफ कर रहा है मुआतात के जरिए से माखूज शय में, उसके ऊपर मिल्कियत आनन मा के कायल हो जाएं, ताकि इस्तिसाब के भी खिलाफ ना जाए, ताकि मुतलक तसर्रुफ के भी खिलाफ ना जाए, ताकि मुतवक्की बरमिल्क जो तसर्रुफात उसके खिलाफ ना जाए। इन तीनों के आपस में तारुज़ और तनाकुज़ से बचने का रास्ता ये है कि तसर्रुफ को मिल्कियत आवर मान लें। ये कहना चाह रहे हैं, पहले हम इबाहा के कायल हैं। कब तक इबाहा के कायल हैं? मशहूर की बात हो रही, तब कब तक हम इबाहा के कायल हैं? जब तक कि मिल्कियत पर मुल्कियत मालिकाना तसर्रुफ नहीं हो रहा है। क्यों आप इसके कायल हो रहे हैं? जैसे ही तसर्रुफ करेंगे मिल्कियत आ जाएगी, ताकि इन तीन किस्म के तनाकुज़ से बच सकें। बात वाज़ेह हुई या नहीं? यानी तसर्रुफ मिल्कियत आवर नहीं हकीकत में, लेकिन मजबूरी यही है कि तसर्रुफ को ही मालिकाना तसर्रुफ मिल्कियत आवर करार दें, ताकि इस्तिसाब से बच सकें, इस्तिसाब वगैरह से। वअम्मा मा ज़करहु मिन ताल्लुक़िल अख़मास व ज़कवात इला आखिर मा ज़करहु। तवज्जो, क्या कहा था? मुआतात के ज़रिए से अगर मशहूर के बकौल मिल्कियत हासिल नहीं होती और वो शय आपके पास पड़ी रही यहाँ तक कि साल गुजर गया, अब ये क्या है? आपके पास रखी हुई, आपको खुम्स देना पड़ेगा। ज़कात है, साल भर की तमाम शर्तों के साथ ये शय आपके पास पड़ी रही, आपकी मिल्कियत नहीं है, क्योंकि मशहूर क्या कह रहे हैं कि मिल्कियत आवर नहीं। साल पूरा हो गया, आपको ज़कात देना पड़ेगी। इसी तरीके से इतना माल मुआतात के जरिए से लिया हुआ है कि अगर मिल्कियत हो तो मेरे ऊपर हज वाजिब हो जाएगा, मिल्कियत ना हो तो हज वाजिब नहीं होगा। तो ये जो मतलब इस्तात आवर और ये माल दूसरे का अगर आप मिल्कियत नहीं तस्लीम कर रहे हैं, जैसा कि मशहूर का नजरिया है, तो इससे ये लाजिम आता है कि गैर के माल को आप अपनी मिल्कियत बना रहे हैं। खुम्स देने का मतलब क्या है कि आपकी मिल्कियत है, अपने मिल्क में से खुम्स देना है, अपने माल से ज़कात देना है, अपने माल से हज करना है। ये इस्तिबादात जो जनाब मुहक्किक शेख जाफर काशिफुल ग़िता ने कहा था कि व अम्मा मा ज़करहु मिन ताल्लुक़िल अख़मास, खुम्स लाजिम आ जाएगा देना, ज़कात देना पड़ेगी, हज करना पड़ेगा उस माल से, इला आखिर मा ज़करहु 10-12 चीज़ें जो जिक्र की गई थी, फ़हुवा इस्तिबाज़ो महद, ये सिर्फ बईद जानना, ताज्जुब करना है, हकीकत में इसका और कोई इश्काल पैदा नहीं होता। ज़कात दी जा सकती है, खुम्स दिया जा सकता है, हज वाजिब होगा, उसके हम दलील पेश कर रहे हैं। अब जनाब शेख जाफर काशिफुल ग़िता ने यह भी कहा है, तवज्जो करें यहाँ पे, कि खुम्स हो, ज़कात हो, हज वगैरह ये जो हम कह रहे हैं कि लाजिम आता, जबकि कायल है कि मिल्कियत नहीं है। मशहूर किस बात के कायल की मिल्कियत नहीं है, तो माल गैर में कैसे खुम्स देंगे साल भर गुजर जाने के बाद? माल गैर में ज़कात कैसे देंगे साल भर गुजर जाने के बाद? हज का वक्त आ गया, हज आपके ऊपर वाजिब कैसे हो जाएगा जबकि आपकी मिल्कियत नहीं है? गैर की मिल्क को अपनी मिल्कियत करार देना होगा। अब उन्होंने कहा कि देखिए, दर हकीकत इस तरह के माल में ज़कात न देने का जिम्मेदारी, खुम्स न देने का और इस्तात पैदा होने न होना, ये सीरत चली आ रही है कि गैर के माल में खुम्स नहीं देना है, गैर के माल में ज़कात नहीं देना है, गैर के माल से हज नहीं करना है। गैर का माल है तो आपके ऊपर रिबा का हुक्म नहीं आएगा। कहने कि शेख जाफर काशिफुल ग़िता ने ये कहा है कि खुम्स हो, ज़कात हो, इस्तात वगैरह दफ़ा व दफ़अहु, दफ़ए शेख जाफर काशिफुल ग़िता इसका जवाब दे रहे हैं बेमुखालिफतिन लिस्सीरत, क्योंकि ये सीरत के मुखालिफ है कि हम वो माल जो दूसरे का है उसके ऊपर ज़कात दें, ये सीरत के खिलाफ है। वो माल जो दूसरे का उसके ऊपर ज़कात दें, खुम्स दें उसके ज़रिए से। कहने की जनाब शेख अंसारी साहब फरमा रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि चूंकि मुखालिफ सीरत है लिहाजा ज़कात नहीं है,
लिहाजा खुम्स नहीं है, लिहाजा हज नहीं करना पड़ेगा। हम कहेंगे कि ये आप जो सीरत से तमस्सुक करके कह रहे हैं कि गैर के माल में ज़कात नहीं, गैर के माल में खुम्स नहीं, गैर के माल से हज नहीं, ये दर हकीकत सीरत की तरफ रुजू है। आप क्या कह रहे हैं कि मुखालिफ सीरत है कि गैर के माल में खुम्स दिया जाए, मुखालिफ सीरत है गैर के माल में ज़कात दी जाए। हम आपसे पलट करके कहेंगे रुजू उन इलैहा, ये तो आप सीरत ही की तरफ रुजू कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि माल गैर में ज़कात नहीं, माल गैर में खुम्स नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सीरत ये कायम है कि कभी गैर के माल पे ज़कात नहीं दी जाती, गैर के माल पे खुम्स नहीं दिया जाता। हम कहेंगे कि ये जो आप सीरत से तमस्सुक करके ये बातें कह रहे हैं, ये दर हकीकत रुजून इलत सीरत है, सीरत ही की तरफ रुजू है। वो ये है कि सीरत कायम रही है कि जो माल मुआतात के जरिए से लिया जाता है उसके ऊपर इब्तिदा से ही तसर्रुफ मालिकाना होता रहा है। यानी कि वदफ़हु शेख जाफर कबीर का ये जवाब देना कि खुम्स नहीं ताल्लुक पैदा करेगा, ज़कात ताल्लुक पैदा नहीं करेगी, ये मुखालिफ सीरत मुस्तमिर्रे उलमा और फुक़हा और अवाम रहा है। हम कहेंगे रुजू उन इलैहा, ये सीरत ही की तरफ रुजू है, कोई दलील मुस्तकिल आप पेश नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे नहीं जनाब, सीरत मुस्तमिरा मुआतात में ये रही है सदर इस्लाम से कि जब भी कोई चीज़ माखूज बिल मुआतात हो, उसके ऊपर जैसे ही माल मुंतकिल हुआ उसका खाना पीना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा आप इसके ज़रिए से जवाब नहीं दे सकते। प्लस इन्ना मा अन्ना तअल्लुकल इस्तिताअतिल मूजिबति लिल हज व तहक्कुकुल गिना अल माने इन अन इस्तिहकाकिज़ ज़कात ला यतवक्कफ़ान अलल मिल्क। दूसरी बात हम तरक्की करते हुए ये कह रहे हैं कि मुआतात के जरिए से जो मुआतात के जरिए से लेन देन हुआ है, इसमें होता क्या है? आप ये कह रहे हैं कि इस्तिसाब करें कि मिल्कियत नहीं आई है, सही। दलाइल और अदिल्ला क्या कह रहे हैं? अहल्लल्लाहुल बै तिजारतन अन तराज, और सीरत मुस्तमिरा कह रहे हैं कि नहीं, इब्तिदाई से मिल्कियत है। मुतसर्रिफ बर मिल्क, वो तसर्रुफात जो मुतवक्किफ बर मिल्क है, वो कह रहे हैं कि गैर मालिकाना तसर्रुफ करिए, मालिकाना तसर्रुफ नहीं कर सकते। यहाँ पे वापस आ जाइए, वो ये है कि ज़कात नहीं दे सकते, खुम्स नहीं दे सकते, इस्तिताअत हासिल नहीं होती कि जिसकी ज़रिए से आप हज कर सकें, ऐसा गिना, ऐसी दौलतमंदी हासिल नहीं होती कि आप दूसरे से ज़कात ना ले सकें। इन सब के लिए हमारा जवाब ये है, ये कहाँ से लाजिम है कि जब अपनी ही मिल्कियत हो तभी आप मुस्तती होंगे, अपना ही माल हो तभी आप मुस्तती होंगे। नहीं, दूसरे ने बज़ल किया, हमारे पास हज बज़ली भी है, नियाबती जैसे होता है उसी तरीके से किसी ने आपको पैसा दिया, कैसे पैसा देने की वजह से अगर हद निसाब इस्तिताअत तक हो, आपका माल नहीं है, फिर भी आपके ऊपर चूंकि आपको दिया गया, क्या हो जाएगा? हज आपके ऊपर बकिया शराइत मौजूद हो तो वाजिब हो जाएगा। ऐसे ही मुआतात के जरिए से लिया हुआ माल, उसके ऊपर भी इस्तिताअत हो जाने की वजह से हज वाजिब हो जाएगा। दोबारा सुनिए, ये कहा गया था ज़कात ताल्लुक नहीं पैदा करेगी, खुम्स ताल्लुक पैदा नहीं करेगा, इस्तिताअत नहीं पैदा होगी, वरना गैर के माल में तसर्रुफ कहलाएगा। हमारा जवाब ये है कि हज एक मर्तबा ये है कि आपने कमाया, इस्तिताअत पैदा हो गई और कोई कर्ज वगैरह नहीं है और शर्तें सारी मौजूद है तो आपके ऊपर हज वाजिब है। इसी तरीके से अगर कोई बज़ल करे, इतना पैसा दे कि आप मुस्तती हो जाएं, तो आपके ऊपर तब भी हज वाजिब हो जाएगा। वैसे ही मुआतात के जरिए से ली हुई चीज के ऊपर भी इस्तिताअत पैदा हो जाए तो हज वाजिब होगा। दोनों की नज़ीर हमने आपके सामने पेश कर दिया। मा अन्नल इस्तिताअ अल मूजिबात लिल हज, ऐसी इस्तिताअत जो हज को वाजिब कर देती है, वो क्या है? मुतवक्किफ बर मिल्क नहीं है। वाज़ेह बात, ऐसी इस्तिताअत जो इंसान के ऊपर हज वाजिब कर दे,
वो मुतवक्किफ बर मिल्क ना आपकी प्रॉपर्टी हो तभी आपके ऊपर इस्तिताअत होगी, तभी आपके ऊपर हज वाजिब होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ने पैसा दिया, आपकी मिल्कियत नहीं बनाया, आपको दे दिया, हिबा कर दिया है, ये आप उसके जरिए से आप हज करिए, क्योंकि बज़्ल किया है और हज उसके ऊपर आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। ऐसे ही मुआतात के जरिए ली हुई चीज में अगर इस्तिताअत पैदा हो जाए, वलो मिल्कियत के हम कायल नहीं हैं, मगर इस्तिताअत के कायल हो जाएंगे, हज वाजिब हो जाएगा। और जब आप हज करेंगे तो वो तसर्रुफ मालिकाना उस शय के ऊपर कहलाएगा, आपकी मिल्कियत हो जाएगी। दूसरे, तहक्कुकुल गिना, वो क्या नाम है, ऐसा सरवतमंद हो जाना कि जो आपको ज़कात का माल लेने से माने हो। यहाँ जरूरी नहीं है कि आपके पास खुद का इतना पैसा हो कि आप ज़कात का पैसा न ले सकें, हक के ज़कात न ले सकें। नहीं, किसी ने आपको दे दिया है, इस मिक़दार में दे दिया है कि अब आप फकीरी के दायरे से निकल गए, अब भी आप ज़कात नहीं ले सकते अगर दूसरे ने दे दिया है। वो जो दूसरे ने दिया है मालिक नहीं बनाया है, लेकिन अगर आपके हवाले कर दिया है तो उसके बज़्ल करने से आप खत्ते फ़क्र से निकल जाएंगे। खत्ते फ़क्र से निकलने की वजह से आप ज़कात का माल कबूल नहीं कर सकते। व तहक्कुकुल गिना अलमाने अन इस्तिहकाकी ज़कात, अन इस्तिहकाकी ज़कात नहीं, ज़कात लेने का हक नहीं रह जाएगा अगर वो सरवतमंदी जो माने हो रही है वो मुहक्कक हो जाए। कहने की व तहक्कुकुल गिना अलमाने अन इस्तिहकाकी ज़कात, ये दोनों ला यतवक्कफ़ान तस्निया का ज़मीर इस्तेमाल करें इस्तिताअत और गिना दोनों की तरफ, कि ला यतवक्कफ़ान अलल मिल्क, ये दोनों मिल्क के ऊपर मौकूफ नहीं है। मिल्कियत भले ही ना बने, अगर किसी ने आपको इतना बज़्ल किया है कि जिसकी वजह से इस्तिताअत पैदा हो गई है, हज वाजिब हो जाएगा। इतना पैसा दिया है कि आप खत्ते फ़क्र से बाहर निकल जाएं तो आप ज़कात नहीं ले सकते। कैसे ये दोनों मालिका मिल्कियत नहीं थी, इसके बावजूद मिल्कियत नहीं थी, इसके बावजूद ज़कात भी, अरे हज भी आपके ऊपर वाजिब हो गया, ज़कात भी आप नहीं ले सकते। यही सूरत मुआतात में ली हुए अमवाल की है, मुआतात के ज़रिए से ली हुए माल के ऊपर बोलो हम मालिकियत के कायल नहीं है, मिल्कियत के कायल नहीं है, क्योंकि इस्तिसाब रोक रहा है। इस्तिसाब क्या है? रोक रहा। बोलो मिल्कियत के हम कायल नहीं हैं, लेकिन अगर साल गुजर जाए तो आपके ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा, ज़कात वाजिब हो जाएगी। हज का वक्त आ जाए तो इस्तिताअत की वजह से आपके ऊपर हज करना वाजिब हो जाएगा। आप दोनों तरफ से ये बात कह सकते हैं। फ़क्र के तहक्कुक की बुनियाद पर जिसके पास पैसा था उसने आपको हदिया कर दिया, हल अब अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा जाए, आपको पूरा का पूरा माल आपको हदिया कर दिया, आप खत्ते फ़क्र से निकल गए, ये खत्ते फ़क्र में दाखिल हो गया। ये इस्तिहकाक ज़कात रखता है, क्योंकि अभी इसके पास भलो मेरा माल दूसरे के पास है, लेकिन मेरे पास ना होने की वजह से मैं मुस्तहक के ज़कात बन जाऊंगा। आप खत्ते फ़क्र से निकल करके ज़कात नहीं ले सकते। दोनों तरफ से कहा जा सकता है। और माल नहीं ले सकते, मतलब आप मुस्तफी हो गए, दे नहीं सकते। मुस्तफी हो गई क्या? आगे दे सकते, वो तो हम मिसाल दे चुके। ज़कात, खुम्स और हज, ये तीनों चारों 12 मिसालें थी ना, वो सब के एक साथ लेकर के चलना है। अगर मुस्तती नहीं थे, अपने पास इतना पैसा नहीं था, हज वाजिब नहीं था, मुआतात के जरिए से इतना मिला है कि अब इस्तिताअत पैदा हो गई, हज वाजिब हो जाएगा। कोई कहे कि अपने माल में हज करना है, करेंगे, अपना माल है, क्यों? इसलिए कि दूसरे के बज़्ल करने से जैसे इस्तिताअत पैदा हो जाती है, वैसे मुआतात के जरिए से माफूज होने पर भी इस्तिताअत पैदा हो जाती है। यही बात जो है खुम्स और ज़कात की है। पैसा आपके पास इतना है कि बकिया चीज़ों में भी खुम्स है, और ये जो माल है ये भी आपके खर्च से बच रहा है। तो अब कहें कि इसके ऊपर खुम्स नहीं है क्योंकि दूसरे का माल है, हम कहेंगे नहीं, जिसने आपको मुआतात के जरिए से दिया है वो आपकी मिल्कियत भले ही नहीं था, अब चूंकि साल गुजर चुका है, ये आपकी मिल्कियत से खुम्स निकलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसी ने आपको हदिया किया हो। यही सूरत ज़कात की है। मेरे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं क्योंकि मेरे पास शराइत नहीं पाए थे, किसी ने इतना माल दिया कि साल भर गुजर गया, सारी शराइत मौजूद हैं, वहां पे क्या है? ज़कात वाजिब हो जाएगी। यही सूरत खत्ते फ़क्र और गिना की भी है। दोनों मैंने आपके सामने वज़ाहत की।
वाम्मा कौनु तसर्रुफ मुमाल्लिकन लिल जानिबिल आखर, आज मैं तसर्रुफ कर रहा हूँ, मेरी भी मिल्कियत बन रही है, तरफ मुकाबिल भी उसका माल का मालिक बन रहा है, मुआतात के जरिए से लेन देन हुआ है, हम तमलीक के कायल नहीं हैं, मगर एक तरफ का तसर्रुफ दूसरी तरफ के लिए मुमल्लिक का सबब बने, क्या ये ऐसा हो सकता है? कहने इसके भी मुल्तज़म होने में कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल वही 3 दलीलें आज भी वही है, वो ये है कि कैसे ये कहा गया था तसर्रुफ मुमल्लिक बन रहा है, क्यों? इसलिए कि इस्तिसाब मिल्कियत नहीं ला रहा है, इस्तिसाब कह रहे हैं कि मिल्कियत नहीं है। उधर से अदिल्ला क्या कह रहे हैं? हल्लल्लाहुल बै की तिजारतन तराज की और सीरत मुस्तमिरा की मिल्कियत इब्तिदा से है, और जो मालिकाना तसर्रुफ वाली मना कर रही थी वो भी। इन तीनों से बचने के लिए हमने क्या कहा था? तसर्रुफ मुमल्लिक है, ऐसे ही तसर्रुफ मुमल्लिक है हमारे लिए भी, तरफ मुकाबिल के लिए भी। मैं तसर्रुफ कर रहा हूं उसके माल में, मेरा तसर्रुफ उसके लिए मुमल्लिक कैसे बनेगा? कहने अगर ना मुमल्लिक बने तो नतीजा क्या होगा? जो आपने तसर्रुफ किया उसके ऊपर भी आपकी मिल्कियत है, और वो जो दिया उसके ऊपर भी मिल्कियत आपकी है। समन और मुस्मन आपकी जगह पे एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। इससे बचने का तरीका ये है कि एक तरफ के तसर्रुफ को उसके लिए भी मुमल्लिक माने, उसकी शय पे जो इस्तेमाल किया है, और तरफ मुकाबिल को जो हमने दिया है उसके ऊपर वो मालिक हो जाए। मेरा तसर्रुफ गैर के लिए मुमल्लिक हो, क्यों इसके कायल हो रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसके कायल ना हो तो नतीजा ये लाजिम आता है कि उसका माल भी मैंने इस्तेमाल किया, सही, और वो मेरा माल अपनी मिल्कियत में मेरी बाकी रहे, तो समन और मुस्मन क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए ये मुकम्मल तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि जैसे हमने तसर्रुफ को मुमल्लिक माना है, वैसे यहाँ पे भी तसर्रुफ इसके लिए भी और तरफ मुकाबिल के लिए भी मिल्कियत आवर होगा, क्योंकि इस्तिसाब मिल्कियत से मना कर रहा है। मुतलक तसर्रुफ दलीलें कहने की जायज हैं। इन तीनों किस्म के मुतनाकिस दलीलों के से बचने का तरीका यह है कि तसर्रुफ को मुमल्लिक इसके लिए भी माने, तरफ मुकाबिल के लिए भी माने, और यही कहते कि इसका जवाब जाहिर है, वही जो अभी हमने बयान किया उसी के रोशनी में वही खत्म हो जाएगा, यानी वही जवाब दे रहा है। वाम्मा कौनु तसर्रुफ मुमल्लिकन लितरफिल आखर फक़द ज़हरा जवाब हो, उसका जवाब जाहिर है। जवाब जाहिर होने का मतलब ये है कि अगर हम इसके कायल नहीं होते तो समन और मुस्मन तसर्रुफ करने वाले के यहाँ जमा हो रहा है, और ये दुरुस्त नहीं है। इबाहत तसर्रुफ अहल्लल्लाहुल बै तिजारतन तराज और सीरत मुस्तमिरा करें, इब्तिदा से मिल्कियत हासिल है, इस्तिसाब करा मिल्कियत बिल्कुल हासिल नहीं है। इन सब से बचने का तरीका यह है कि इसी तसर्रुफ को मुमल्लिक तलफ़ आखर भी माने। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कम पढ़ा लेकिन बहुत दकीक बहक है।